if I'm audible and my screen is visible to you. Meanwhile, like, do we have someone from the Marticas as in the admin, like Karan or Damini or someone? Okay, no problem. I think everyone, yes. Okay, okay, Karan, thanks a lot. So guys, this is Rahul here. My name is Rahul Agarwal, and I have been asked to take your trainings going forward on the Python and the machine learning and the deep learning. Uh, so before we start, we'll take 10 minutes for brief introduction, and then I would like to understand from you the topics that you would like me to cover first. Okay. Uh, I can see few of you. I am already aware about few of you. So a repetition, but data, machine learning, and deep learning in one of the financial fintech organization in Gurgaon. And yeah, so I have been working there like as about me. I have some YouTube channels and the GitHub accounts. I'll share with you primarily the GitHub account where I have all the code for you. You can go through it. That's about me. And now I would like each one of you to just a brief introduction, like whether you have worked on machine learning in the past or not. Can you start? Okay. So my question is, I just call out the new guys. You have to just tell me whether you are currently working in a company or not, and how are you working on machine learning, maybe in Kaggle or in the company? That's it. The class. So I think Yes, yes, okay, sure. Aditi. Yeah, I think Aditi is there. Aditi, can you start? Sir, first of all, I'm the same Aditi from Hadoop. Okay. Okay. Okay, Aditi. So I'm aware about you. Thanks a lot. So okay, I'm guys. See, today's session I can only continue if you guys interact and tell me the concerns, right? Like what all are your weak areas or what you want me to focus more on. Don't hesitate, at least, please. Good morning, sir. My name is Anam, and I've Anam, completed hi. my BTech. Yes, sir. Sir, I've completed my BTech in Electronics and Communication, and I'm a newbie to machine learning, so I have not worked anywhere, neither working. So it's all new and helpful for me. Thank you. Perfect. Thanks a lot. Gulzar.
Vipul this side. Yeah, Vipul, go ahead. Hello, am I audible? Yeah. Hi, sir. Myself Vipul, and I did not come. And yeah, previously I worked with Rockwell Automation as a client Much like I think you guys already Python and such as NumPy, Panda, and defining functions, etc. But we have not covered the statistics part of the machine learning algorithm, which we intend to cover. Apart from that, we have also covered some classification models such as random forest decision tree and logistic regression. Yeah, that's all I covered. Okay, and great. you can refer to the email as well. I marked an email to Damini as well, which all topics needs to be covered in this module. You can. They can go next. Hi, sir. My name is Nitika. Oh. Yeah, Nitika, go ahead. Yeah, I have completed my BSc Electronic Honors from Delhi University, and after that, last year only I completed my graduation, and now I am pursuing this course. So I'm new to machine learning, and I don't have much coding background, only Java basics were there. Okay, okay, perfect. Next. And so in this course, actually, some of the algorithms were covered, and Python basics and NumPy pandas. Datetime module was remaining, and all the tests and some hyperparameters, all the topics. Hi, sir. Nishna this side. Yeah, Nishna. Sir, I've done my BTech in Electronics and Communication. Yeah, that's all. So how comfortable? So since we have only done the basics and a little of machine learning algorithms, and we haven't had much practice in it. Like we've only gone through the concepts once about with the machine learning algorithms, like. And to really make us practice on large data sets. Perfect, perfect. So when you say you did KNN, right? So can you tell me some of the distance metrics? What's up? Yeah. Can you tell me some of the distance metrics? Distance metric. You are aware about this? We use in KNN distance metric. Right. Correct. Yeah. Manhattan, Euclidean, Mahalan-Orbis, right? Yes. So these are your distance metric or distance formula
that we normally talk about in KNN. Okay. Thanks a lot, Nishta. Okay, anyone else? Good morning, sir. Yeah, Prakisha. Hello, sir. Pragisha Chawla this side. Yeah. So I did my bachelor's in university. Then I did master's in I was inclined to using it, so that is why I opted for this field to get into data science. So say तो उसके अलावा मेरे को रिवाइज किया फिर problem. Class classification
निकले, but render is Sir. तो इन 3 के अलावा और कोई किया है? नो सर. भी नहीं समझ आए थे, थोड़े तो ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन भी हमने नहीं किया किया था, सर. लिनियर is not done, but yes, सर कितने क्लियर है? क्लियर नहीं होंगे तो कोई फायदा हाँ सर एक्चुअल एल्गोरिथम्स है हमारी बेसिक एमएल एल्गोरिथम्स, इन सब की वर्किंग के को लेके हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है। जो इससे रिलेटेड टेस्ट वगैरह होते हैं वो और इनके यहाँ पे पैरामीटर्स, तो बेसिकली स्टैट्स टेस्ट ये सब हम लोग को कवर नहीं हुआ, ये हम लोग को क्लियर नहीं है। आपको स्टैटिस्टिकल बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हाइपर पैरामीटर्स। otherwise also I think we need a revision of the ML concepts as well. मतलब देखो I आज don't know about the I don't know about the rest, but SVM में क्लियर नहीं हुआ। इट्स फाइन। देखो आज का पर्पस सिर्फ यही है, जस्ट टू टॉक टू यू गाइस एंड अंडरस्टैंड And so या सर हम लोग को एनालिसिस और ईडी भी
imbalanced data. Do you know how to treat imbalanced data? सर वो कर Data नहीं क्या है? पता है, वो कंसेप्ट पता है, बट किया नहीं पाइथन में। परफेक्ट परफेक्ट। मतलब इम्बैलेंस डेटा का मतलब है कि अगर आपके मान लो टारगेट क्लास है जहां प्रिडिक्ट करना है आपको सरवाइव और नॉट सरवाइव, तो सरवाइव का डेटा तो 90% है और नॉट सरवाइव का सिर्फ 10% ही रिकॉर्ड्स है आपके पास। तो उस केस में आप अगर अपने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट्स भी करोगे तो उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपका मॉडल ओवरफिट हो सकता है। तो उस प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए हम कुछ इम्बैलेंस डेटा ट्रीटमेंट्स करते हैं, राइट? हाँ जी, वो करना है सर अभी। नहीं नहीं वो तो ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मैं अभी बस नोट कर रहा हूँ विद मी। ओके, 1 सेकेंड। कोरिलेशंस, फीचर इंजीनियरिंग जब आपने की होगी तो फीचर इंजीनियरिंग में कैन एनीवन टेल मी डिफरेंस बिटवीन फीचर सिलेक्शन एंड फीचर एक्सट्रैक्शन? फीचर सिलेक्शन क्या होती है और फीचर एक्सट्रैक्शन क्या होती है? तो फीचर सिलेक्शन मींस कि हम कुछ फीचर जो हैं सेलेक्ट करते हैं, मतलब एक्सक्लूसिव कुछ फीचर्स लेते हैं। एंड जो सेकंड यू आस्क्ड वाज एक्सट्रैक्शन। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो सर एक्सट्रैक्शन में ये होता है कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग फीचर्स होते हैं उससे हम कोई न्यू फीचर्स डिराइव करें। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मतलब क्या होता है, फीचर इंजीनियरिंग की जो फील्ड होती है उसमें आप देखते हो कि आपके कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? तो उस पूरी प्रोसेस को करने के दो तरीके हैं इसमें, फीचर सिलेक्शन एंड फीचर एक्सट्रैक्शन। फीचर सिलेक्शन में गिवन फीचर में से ही कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं आप वो पता लगाते हो, लेकिन फीचर एक्सट्रैक्शन में आप एक डिराइव्ड वेरिएबल, एक नया वेरिएबल खुद का बनाते हो। जैसे कि मान लो आपको किसी का हाइट और वेट पता है, यूजिंग दैट यू कैलकुलेट BMI इंडेक्स and use BMI to predict whether this person will be surviving for next 10 years or 100 years. Okay, तो जब आप कोई एक नया फीचर बनाते हो फीचर से, तो वो फीचर एक्सट्रैक्शन है। Okay, these comes under feature engineering. Okay, we'll see this. Okay, coming back to the machine learning thing. अनसुपरवाइज लर्निंग में आपने अनसुपरवाइज में कौन से मॉडल किए हैं? के मींस की है बस। के मींस, ओके परफेक्ट, KMC. वेरी गुड, no problem. K means PCA. Rahul is saying PCA, so that is very important. You did PCA also. Okay, so Rahul, can you tell me PCA is feature selection or feature extraction? No, but PCA, yes, it's dimensionality reduction, definitely. Tanya is saying feature extraction. What other people think? PCA is what, guys? Sir, Extraction. feature selection, sir. No problem, feature selection, okay. Because पुराने जो फीचर्स होते हैं वो सारे लॉस्ट हो जाते हैं। पीसीए अभी भी आप करते हो, तो अगर आपने पीसीए भेजे अपने मॉडल में नहीं है, तो वो जो दो प्रिंसिपल कंपोनेंट बनते हैं वो दो नए फीचर्स होते हैं, पुराने फीचर्स लॉस्ट हो जाते हैं। प्रोसेस है नहीं, फीचर एक्सट्रैक्शन कहलाती है। ओके Vipul, okay, Gulzar is saying variance, covariance structure of a set of variables through linear combinations. Yeah, definitely, Gulzar, we create a covariance matrix while talking about the PCA. Okay, okay. Thanks a lot. Okay. Other than this, और कुछ मॉडल जो मैं मिस कर रहा हूँ?
अनसुपरवाइज में कुछ और है इसके अलावा जो आपने किया हो? ओके फाइन. टाइम सीरीज इज No, not sir. done, right? No. No. Okay. No problem. Perfect. Okay. तो जैसा मैंने आपको बोला था गाइस कि अभी तो हम क्या करेंगे आज, विल जस्ट do some hands on और कल से हम डिटेल्ड लेफ्ट आउट टॉपिक आना, नो प्रॉब्लम. ओके. पिकल फाइल बनाई है आप लोगों ने? मतलब पिकल फाइल का आइडिया है आप लोगों को? पिकल फाइल क्या होती है No, पाइथन में? sir. हाँ, नो प्रॉब्लम. आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि पाइथन में जब भी हम मॉडल बनाते हैं हम उससे एक पिकल फाइल बना लेते हैं. वो पिकल फाइल serialized फॉर्मेट होता है जिसका फाइल कॉन्सेप्ट है और इसे हम मॉडलिंग में यूज करते हैं. ठीक है. ओके. इसके अलावा कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज पीएमएमएल फाइल? पीएमएमएल फाइल, एनीवन? एनी आइडिया अबाउट पीएमएमएल फाइल? मतलब नहीं पता तो इट्स फाइन. देखो पीएमएमएल क्या होता है. देखो पीएमएमएल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पीएमएमएल की फुल फॉर्म होती है प्रिडिक्टिव मॉडलिंग मार्कअप लैंग्वेज. वेरी गुड विपुल, वेरी गुड. अगर आप में से कुछ लोगों को XML पता हो या HTML पता हो जो एक वेबसाइट बनाने के काम आता है, लेट मी ट्राई टू शो यू. कंट्रोल वन सेकेंड. देखो मैंने ये वेबसाइट, ये मैंने गूगल का कोई भी पेज खोला हुआ है और उसका मैंने वन मिनट. Okay, so we will talk about it anyways later, but you guys should be aware about two kind of important files in machine learning or Python. One is pickle file, another is PMML file, which is predictive modeling markup language. वो एक तरह की HTML या XML फॉर्मेट में लिखी जाती है. ये यहाँ पर अभी कॉपी नहीं हो रहा है, otherwise I would have shown you. One second. ओके. जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे मेरी स्क्रीन पे मैं कुछ टैग बना रहा हूँ, मान लो नेम. ओके. जिन लोगों को HTML या XML नहीं पता है मैं वो बता रहा हूँ. दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट. मैं आपको एक फाइल बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पे. ये मतलब एक फाइल है, मान लो HTML या XML फाइल है. उसमें हमेशा टैग्स होते हैं, इनको हम टैग्स कहते हैं. ठीक है. ये नेम नाम का टैग है, ये ओपन हो रहा है और यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है. ठीक है. उसके बाद मान लो एज है, ये यहाँ पे क्लोज हो गया. ओके. तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे मेरा बताने का, ये एक ओपन एंड क्लोज टैग है नेम नाम का. ये एक और टैग है जो ओपन हो रहा है और यहाँ क्लोज हो रहा है.
इसका नाम है एज। अब नेम में मान लो मैंने वैल्यू डाल दी राहुल और एज डाल दी उसकी 30। तो अब हुआ क्या कि यहाँ पे राहुल इज अ वैल्यू, 30 इज हिज एज, बट हु इज राहुल? सो कंसिडर राहुल एज अ स्टूडेंट. Okay, Rahul is a student. So I will close it here. So this thing, guys, is a kind of data. This is a data format which is known as XML. And you guys are data scientist, okay? And data scientist का काम ये नहीं है कि उसको मॉडल्स पता हो, ऐसा नहीं है. वो सबसे इंपॉर्टेंट काम है डेटा साइंटिस्ट का, डेटा पता होना चाहिए. मतलब जब मैं कहता हूं कि तुम डेटा साइंटिस्ट हो, तो जितने डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा फॉर्मेट्स की तुम्हें नॉलेज है, उतने अच्छे डेटा साइंटिस्ट तुम बन सकते हो. तो मान लो अभी तक आप लोगों ने क्या देखा होगा, आपको वैल्यू आती होगी राहुल कॉमा सेपरेटेड, फिर आ गया मान लो अजय, उसकी एज, ये फाइल. सेपरेटेड फाइल. तो XML ये इसी तो XML फॉर्मेट में ये इस तरह से दिखेगा जो आप यहां देख रहे हो. ये एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है. मान लो ये राहुल, एज 30, ये पहली एंट्री है. फिर इसी में यहां नीचे दूसरी एंट्री होगी अजय एंड 20. तो होता ये है कि आपको कई बार XML फाइल भी मिलती है. तो XML फाइल को रीड करने के अलग फंक्शंस हैं. पांडास को यूज करा आपने, तो पांडास को यूज करके आप CSV रीड करते थे, आप XML भी रीड कर सकते हो. अलग पैकेजेस हैं मेरे पास. तो फर्स्ट फोकस शुड बी ऑन अंडरस्टैंडिंग द डेटा. सो एंड डिफरेंट फॉर्मेट्स. दिस इज CSV फॉर्मेट और एंड दिस इज XML फॉर्मेट. XML में हर चीज टैग के अंदर होती है. ये एक्चुअल वैल्यूज हैं बट दे आर इनसाइड द टैग्स. तो ये हो गया मेरा XML फॉर्मेट. तो ये जो PMML फाइल्स होती हैं, ये एक्चुअली इनके अंदर डेटा नहीं होता, इनके अंदर मॉडल की इंफॉर्मेशन होती है. हम देखेंगे क्या होती है इंफॉर्मेशन. अगर आपने कोई लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाया, तो लीनियर रिग्रेशन की PMML फाइल अलग होगी, लॉजिस्टिक रिग्रेशन की PMML फाइल अलग होगी, लेकिन वो एक XML फाइल होगी. तो यू शुड नो कि ये XML होता क्या है. जब हम लोग नॉर्मली होता ये है कि हम लोग मॉडल तो बिल्ड कर लेते हैं. मान लो मैंने आपको डेटा दिया, आपने मॉडल बना लिया, कोई भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन या लीनियर रिग्रेशन, लेकिन जब उसको डिप्लॉय करना होता है प्रोडक्शन में, रियल वर्ल्ड में, तो हमें कई बार PMML फाइल बनानी पड़ती है. तो PMML फाइल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट कॉन्सेप्ट. और PMML फाइल का ये फायदा होता है कि आप मॉडल एक बार ट्रेन करके रख दो, बाद में आपको रीट्रेन नहीं करना, सिर्फ प्रिडिक्शंस करने हैं.
PMML फाइल को यूज करके सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शंस करने हैं। So there is this organization known as DMG और Data Mining Group. So निष्ठा EDA तो आपको करना ही होगा। मेरा कहने का मतलब है जब आपने इनिशियली EDA कर लिया और मॉडल बिल्ड कर लिया, उसके बाद आपको सिर्फ प्रेडिक्शन करना है। बट अगर आप कहते हो कि मेरा जो फ्यूचर डेटा है जिस पे प्रेडिक्शन करना है उसे भी EDA की जरूरत है, तो हमें एक सेपरेट डेटा पाइपलाइन बनानी पड़ती है जो डेटा को पहले क्लीन करती है, उसके बाद उसे मॉडल में सेंड करती है। तो EDA तो आपको अलग से करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए भी हम पाइपलाइन बना सकते हैं, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली पाइपलाइन के थ्रू हो जाएगा। बट यस, जो भी डेटा आपके पास फ्यूचर में आता है उसमें भी हो सकता है मिसिंग वैल्यूज हो, उसमें भी स्केलिंग करनी हो, तो EDA तो आपको करना ही पड़ेगा, बट पाइपलाइन के थ्रू एवरीथिंग कैन बी डन। तो इफ यू लुक हियर, PMML is a format, XML format, if you see, and these are tags. We will talk about them later, but just to give you a hats on, these are PMML tags, and it contains information about each and every model. If you see here, even you can do your statistical analysis and everything. See here, you have different models, right? Neural network, naive Bayes, KNN. So if I click on any one of these, I can show you its XML structure here. So each model has its own XML structure, and all the hyperparameters of that model can be changed from this file also. So if you look here guys, this is one of the PMML file. Okay, मतलब क्या हुआ, मेरे पास कोई मॉडल था जिसको मैंने यूज करा, ट्रेन किया, टेस्ट किया, मुझे लगा मॉडल बहुत अच्छा है, इसे प्रोडक्शन में डिप्लॉय कर दो, मतलब प्रोडक्शन में डाल दो। तो उसकी PMML फाइल बनाई। ये देखो कैसी दिखती है, ये डेटा फील्ड्स हैं। डेटा फील्ड्स आप देख रहे हो, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, इफ यू रिमेंबर ये आइरिस डेटा सेट है। तो आइरिस डेटा सेट को यूज करके ये मॉडल बनाया गया होगा। तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड्स मेरे डेटा में थी, 5। उसमें से भी 5 में से आपके पास एक फील्ड जो है वो कैटेगोरिकल टाइप की है, लेकिन वो टारगेट है या नहीं वो आगे मॉडल ने डिसाइड किया होगा। सो वी कैन चेक इन दी माइनिंग फील्ड। तो डेटा फील्ड जो आपके डेटा में थी, माइनिंग फील्ड जो मॉडल ने समझा, तो मॉडल ने ये 4 फील्ड्स तो नॉर्मल रखी, बट ये जो फील्ड है स्पीशीज, उसका टाइप उसने प्रिडिक्टेड कर दिया, मतलब कि ये आपका टारगेट है जिसको प्रिडिक्ट करना है। सो सिमिलरली there are a lot of other fields that get created by the model, and here you can see KNN inputs. I will again anyways talk about it later, but if you see, जो चीज आप कोडिंग के थ्रू करते हो पाइथन की, वो अल्टीमेटली एक XML फाइल में कन्वर्ट हो जाती है अगर आप चाहो तो। और वो XML फाइल अगर आप मुझे दे दोगे तो मैं उस XML फाइल को यूज करके आपका पूरा कोड रिक्रिएट कर सकता हूँ। मुझे आपका पाइथन के कोड की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने मुझे अपनी PMML फाइल दे दी, मैं आपका पाइथन का कोड रिक्रिएट कर सकता हूँ इस PMML फाइल से ही। तो रिमेंबर, दिस इज सो इम्पोर्टेंट। खासकर आज की दुनिया में, करंट वर्ल्ड में क्या होता है कि मान लो किसी ने R में एक मॉडल बनाया था, लेकिन अब मुझे उसे पाइथन में कन्वर्ट करना है। इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग टास्क। मैं क्या कर सकता हूं, मैं R से एक PMML फाइल जनरेट कर सकता हूं और वो सेम PMML फाइल को पाइथन कर सकता हूं विदाउट रीराइटिंग द एंटायर कोड। ओके, PMML फाइल्स का सबसे बड़ा फायदा ही ये है कि दे आर कंपैटिबल अक्रॉस लैंग्वेजेस। आपने R में यूज करके एक PMML फाइल बनाई, वो आप पाइथन में भी रन कर सकते हो, जावा में भी रन कर सकते हो, एंड वाइस वर्सा।
तो यही XML फॉर्मेट का सबसे बड़ा फायदा है कि इट इज कंपैटिबल अक्रॉस लैंग्वेजेस, अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, यू कैन यूज इट एनीवेयर। बिकॉज जब भी आपसे, एक सेकेंड, HTML टाइप ऑफ PML, नो निष्ठा, HTML तो वेबसाइट बनाने के काम आता है। HTML की यहाँ पे हमें कोई जरूरत नहीं है एज अ डेटा साइंटिस्ट, एंड HTML इज नॉट रिलेटेड टू PMML और HTML का कोई लेना देना नहीं है। बस टैग होता है, HTML में भी टैग्स यूज होते हैं, PMML में भी टैग यूज होते हैं, XML में भी टैग यूज होते हैं। उस तरह से आप देखोगे तो दे आर सिमिलर, बट देयर इज नो रिलेशन बिटवीन अ HTML फाइल और अ PMML फाइल। आप ये कह सकते हो कि PMML is a kind of XML, not HTML. HTML is only for creating web pages, websites. Okay. So you guys can go through this data mining group, DMG homepage. They talk about PMML format, और ये इंडस्ट्री का बहुत, I would say, important format है। 99% कंपनीज PMML यूज करती हैं to deploy their models. There is one competitive format, मतलब PMML का एक कॉम्पिटिटर आ रहा है, DMG ही ला रहा है उसे, इसको कहते हैं PFA, पोर्टेबल फॉर्मेट फॉर एनालिटिक्स, बट वो अभी इतना फेमस नहीं हुआ है, वो अभी इतना फेमस नहीं हुआ है, धीरे धीरे फेमस होगा। बट आप लोग PMML रीड कर सकते हो। PFA is also there, but PFA is of these two formats. Guys, आप में से कुछ को लग सकता है कि ये चीजें काम की हैं या नहीं, बट ये बेस है आपकी मशीन लर्निंग का। See this, PMML and PFA, right? मतलब जब भी आप मॉडल बनाते हो, अल्टीमेटली उसको आप एक फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हो। पिकल फाइल इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, PMML फाइल इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, PFA इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। देयर आर 3 कॉन्सेप्ट्स। तो हम यहाँ पिकल फाइल की तो बात कर नहीं रहे हैं, तो हम पिकल फाइल की बात नहीं कर रहे अभी, हम बात कर रहे हैं PMML की। PMML फाइल्स आर XML फॉर्मेट्स, एंड अभी तक आप लोगों को समझ आ गया है कि XML फॉर्मेट होता क्या है, जो मैंने अभी आपको ये यहाँ पर समझाया कि अगर ये एक CSV फॉर्मेट है, इसका XML फॉर्मेट कैसा दिखेगा, इस तरह से। ये आपका XML फॉर्मेट है। लेकिन वहीं जो PFA है, PFA वो JSON फॉर्मेट को फॉलो करता है या YAML फॉर्मेट को फॉलो करता है। अब ये और 2 नई तरह की फाइल्स हैं जो कि अगेन एक डेटा साइंटिस्ट को पता होना चाहिए। तो JSON क्या होता है? Anyone know full form for JSON or YAML, or have they heard about these things? Guys, yes or no? Okay, no problem. तो देखो, जैसे हमने बात की कि कोई भी मॉडल, किसी भी मॉडल, ओके प्रगिशा, या करेक्ट, यू आर राइट प्रगिशा, आदिति करेक्ट, ओके। सो गाइज, किसी भी मॉडल को डिप्लॉय करने के लिए हम या तो पिकल फाइल बना सकते हैं, PMML फाइल बना सकते हैं, PFA फाइल बना सकते हैं। PMML फाइल एक XML फॉर्मेट है, PFA is a JSON format which is JavaScript object notation. You can just read about these, or YAML, which is yet another markup language. जैसे XML is nothing but extensible markup language or extended markup language. XML is an extended or extensible markup language. YAML is a yet another markup language, and JSON is a JavaScript object notation. So I will just talk about JSON right now because PFA with JSON is most famous. So how JSON looks like, see this.
अब इसी फॉर्मेट को गाइस, इसी फॉर्मेट को, क्योंकि आप लोगों को ये फॉर्मेट्स पता है CSV, अगर मुझे एक जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो हाउ इट विल लुक लाइक. This is my first record and this is my second record within curly braces. So JSON is curly braces. Remember, I am telling you, आज की दुनिया में 40% of the data is either XML or JSON. Okay, no, not comma separated and all. तो पहला जो रिकॉर्ड है उसके अंदर वैल्यू क्या आएगी? राहुल एंड एज. बट क्या सिर्फ ऐसे वैल्यू डाल देना इनफ है? नहीं. JSON contains your schema also, means the column names. So this is Rahul and this is age. So sorry. So this is how a JSON looks like, or a JSON file looks like. You give the name of the column with the value, name of the column with the value. Here it may be like this, without equal to, it can be like this. Okay, key and a value. It is a key value pair. Okay, key value, column name and the actual value, column name and the actual value with the comma separated values. Similarly, the second record will have the value Ajay and age 20. So this is JSON. तो मैं आपको जब डेटा दूंगा तो कुछ डेटा XML फॉर्मेट में होगा, कुछ JSON में होगा. डेफिनेटली 80% डेटा मैं आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में ही दूंगा CSV में, बट वी विल आल्सो वर्क ऑन दीज काइंड्स ऑफ डेटा, XML and JSON. Okay, so remember these are the most important data types in today's world. One second, no? This is hang. Okay, yeah. So you will get your data may be in CSV format, XML format, or JSON format. Okay, so you should know how to use pandas to process these kinds of data sets. Once you, oh, it's handy. So I'm just telling you what happens is, जब आपको डेटा दिया जाएगा, you will use pandas to create what? अगर एक नॉर्मल हम एंड टू एंड प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल की बात करें तो how it will work? You are given a data, you will use pandas, you will create a data frame out of it, then you will split that data frame into train and test. Okay, normally you can take 70-30 ratio or 80-20 ratio, or you don't want to do either of the two, you can simply use the concept of k-fold cross validation. Guys, you heard about k-fold cross validation? Please ping me yes or no. Perfect. तो मतलब अभी हम बात कर रहे हैं कि मैंने आपको डेटा दिया, I gave you the data. It can be in either of the formats. Then you will use pandas to read it. Okay, you get a data frame which is loaded in your memory, the system memory. Then you split it in train and test, or you will not split it directly, rather you will use k-fold cross validation. After that or before that, you will do EDA. Ideally, you can do EDA before split. So let me move it here. So you will first do the EDA. Once you load the data frame, you will do the EDA. All the things that we talked about, missing value imputation, outlier detection, standardization, all those things. Split it. And then finally, you will use your model training. You train the model. Once you train the model, what you capture train accuracy. Then what you do, you use your test data or the validation data.
and you capture your test accuracy. Okay, then what happens? The most important part, which is model evaluation, where what you see, you check train accuracy against the test accuracy. If both are very low, 60%, 65%, you will say your model is underfit. If model is underfit, what you will do? You will ask for more data. Ideally, you will ask for more data if you have less data. But if you think no, data is good enough, you will focus more on feature engineering. That is about underfit. But if you see no, my train accuracy is too good, maybe 99 or 96, but my test suddenly drops, say to 70 or somewhere 75, there is a huge difference between the two. You will say my model is not underfit, rather it is overfit. And when your model is overfit, definitely you will have to change the model or you have to tune it. Okay, the first approach you will apply is to tune it, or else you will try to change this model. For example, you were using a decision tree which is having high chances of overfitting. You will move to a bagging model or a boosting model. Okay, and finally, if you are satisfied with your model evaluation process, you will go ahead with model deployment to production. Okay, and here comes the point where the .py file, that you have, you will convert it into what? Into a pickle file. If you don't want pickle, you will convert it into a PMML, or you will convert it into a PFA, whichever you want, and you will simply deploy it to production. Once it's deployed to production, you will use that PMML file or whatever to simply do predictions. That's it. You don't need to retrain the model because PMML file already contains all the information about the model. So no need to retrain the model, and that's it. And this entire process, starting from this to this to this end to end, is known as your ML pipeline. Okay. In sklearn, there are packages to create the pipeline which do everything from EDA to model ML. Okay, so this is how a typical model in the real world works. Before we go into anything ahead, any questions starting from this entire pipeline that we have talked about? Guys, any doubt, question, concern? Yeah, FE is feature engineering. Sir, what is pickle file? We will work on it. It depends. See, ideally, yes, you should. Okay, either of these three. But yes, pickle file is one of the format which we can. So if you want, I will tell you how to create a pickle file. Okay. So whenever we are doing any model, we can simply use that model and convert it into a pickle file. और even आपका जो R का भी कोई मॉडल होगा, R को तो आप पिकल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, R के मॉडल को आप PMML में कन्वर्ट कर सकते हो और उसको पाइथन में रन कर सकते हो. Pickle is only and only for Python. So I can convert any of your Python model into a pickle file. So I will tell you how to do that. It's a simple process. Sir, Okay. but R में ऐसे बहुत सारे algorithms हैं जो हमारे Python में नहीं है. So how does it? जैसे कि ऐसा कौन सा मॉडल है? I don't think ऐसा कोई मॉडल है. नहीं, but मॉडल के अंदर की फंक्शनैलिटीज थोड़ी डिफरेंट होती है. जैसे
सर जैसे नेम चेंज है, फंक्शंस तो होते हैं बट पाइथन में नेम चेंज है उसका। नेम चेंज मतलब फीचर का यस सर। या वेरिएबल्स का? वेरिएबल्स नहीं सर। कोई प्रॉब्लम? सर जैसे हम कोई एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं सर तो लाइब्रेरी पैकेज की बात कर रही है शायद। यस सर, पैकेज की आप नेम हाइपर की बात कर रहे हो? यस सर, पैकेज एंड हाँ हाइपर हाँ हाँ, पैरामीटर। बताऊं ऐसा क्यों होता है। देखो बड़ा ही सिंपल आया, राइट निष्ठा? आप कोई लीनियर रिग्रेशन मॉडल अगर बना रहे हो आर में, आप उसको जब, राइट? यस सर। अगर मान लो हम एक ही फीचर लेके चलते हैं कि सिर्फ एक फीचर था एक्स जिसको यूज करके वाई प्रेडिक्ट करना था, तो जब मैंने मॉडल को ट्रेन किया तो अल्टीमेटली मॉडल मुझे क्या देता है, स्लोप की वैल्यू और इंटरसेप्ट की वैल्यू, और वही मेरी लाइन की इक्वेशन होती है, राइट? यही मेरा मॉडल है। तो अब कल को आपने बोला कि राहुल मेरी स्लोप की वैल्यू आई थी 0.2 और इंटरसेप्ट की वैल्यू आई थी 3, ठीक है? अब कल को मैं कहता हूं निष्ठा मान लो ये y जो था ये था कि मैं कितने साल जीऊंगा, ओके? मैं अगले 10 साल जीऊंगा या 20 साल जीऊंगा, मेरा सर्वाइवल रेट क्या है या एज कितनी है, और ये x जो है मान लो नंबर ऑफ सिगरेट्स दैट आई स्मोक इन अ डे, अगर कोई स्मोकिंग करता है, ठीक है? तो अब आपने तो एक इक्वेशन बना ली ना निष्ठा, आपका काम यहाँ खत्म हो गया। अब कल को मैं कहता हूं कि पेशेंट P1 है जो कि स्मोक करता है 10 सिगरेट्स इन अ डे, तो आई विल आस्क यू निष्ठा, कैन यू टेल मी कि ये कितने साल और जिएगा? यू विल सिंपली पुट दैट वैल्यू हियर एंड यू कैन टेल मी, करेक्ट? तो मॉडल, any machine learning model is nothing but a equation, that's it. It is no R package, no hyperparameter, nothing. Hyperparameter फिर भी एक important चीज है, I will talk about, but अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझो, एक मॉडल is nothing but a mathematical formula. Without mathematics there cannot be any prediction. तो अब कल को अगर मैं कहता हूं कि जो आपका आर का मॉडल था इसको पीएमएमएल में कन्वर्ट करना है, स्लोप वैल्यू विच इज 0.2, इंटरसेप्ट, और ये मैं आपको तो लिख के बता रहा हूं बट आर का पैकेज होता है आर पीएमएमएल, वो खुद ही बना देगा ये सब। इसकी वैल्यू हो गई 3, ये बन गया आपका मॉडल इज इक्वल टू एलआर, ये आपकी पीएमएमएल फाइल बन गई निष्ठा, ओके सर। जिसमें मॉडल का नाम है, स्लोप है, इंटरसेप्ट है, और इसको ऑलरेडी ये पता होगा कि इनपुट इज इक्वल टू स्मोकिंग, आपको हमेशा मतलब स्मोकिंग इनपुट इसमें पास करना है, वो आपका इनपुट फीचर है, इसको हमेशा ये चाहिए हो। मैंने अल्टीमेटली इस इक्वेशन को एक एक्सएमएल फॉर्मेट में पीएमएमएल में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि मॉडल है लीनियर रिग्रेशन या ओएलएस कह लो, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स। स्लोप ये वैल्यू यहां से उठ के आ गई, इंटरसेप्ट यहां से उठ के आ गया, इनपुट स्मोकिंग है, आउटपुट सर्वाइवल रेट है, दैट्स इट।
मॉडल PMML internally is aware that अगर आप मुझे ये डेटा दोगे तो it will automatically regenerate this formula. So if now I pass this PMML file to Python, one second. So what will happen? I have written a program in R. I use the package RPMML. There is a RPMML package to convert my final model PMML file, and I'll pass this PMML file to Python, and Python will regenerate this equation. This equation will be regenerated by Python by using the PMML package which is available in Python. So this thing which is intermediate. So basically PMML tries to make a mathematical equation out of the file and converts and we can then open it in another coding language. I see. Absolutely. So it extracts from the equation that. Yes. So क्योंकि कभी भी जब आप मॉडल ट्रेन करते हो, जब आपने लीनियर रिग्रेशन भी किया होगा, तो ग्रेडियंट डिसेंट क्या करता है? अल्टीमेटली आपकी एक इक्वेशन ही तो क्रिएट करता है जो आपके बेस्ट वैल्यू ऑफ स्लोप्स देता है आपको. The gradient we haven't done. क्या बोल रहे हो? Gradient we haven't done. नहीं, अरे ग्रेडियंट डिसेंट छोड़ो, आपने कोई भी मॉडल अगर इंप्लीमेंट किया है, सपोर्ट वेक्टर मशीन, डिसीजन ट्री, हर मॉडल के इंटरनल एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है. ओके. बट लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन तो आप सबको ही पता है ना, y = mx + c वाली. तो अगर मैं ये PMML पे वापस जाता हूं, ओके, PMML के भी बहुत वर्जन्स आ चुके हैं. यू कैन सी एनी वर्जन. Let me check which one. अच्छा, ये देखो, जैसे मैंने अपने प्रोजेक्ट्स में वी यूज नॉर्मली कॉम्प्लेक्स मॉडल्स लाइक रैंडम फॉरेस्ट और XGBoost. तो उनमें क्या होता है, अगर आप देखोगे, ये एक ट्री है. ये अगर आप देखोगे, मैं एक डिसीजन ट्री आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ निष्ठा, कि डिसीजन ट्री मॉडल XML में कैसे कन्वर्ट होता है. अगर आप एक डिसीजन ट्री की बात करते हो, उसमें क्या होती है, एक रूट नोड होती है जो कि स्प्लिट होती है किसी कंडीशन पे, मान लो एज के बेसिस पे स्प्लिट हो गई, तो अल्टीमेटली आपके नोड्स बनती चली जाती हैं. तो अब ये जो डिसीजन ट्री मॉडल है, अगर इसको PMML में रिप्रेजेंट करना है, हम कैसे करेंगे? देखो, सिंपल प्रेडिकेट फील्ड आउटलुक, मतलब पहली फील्ड जो है वो उसका नाम है आउटलुक, ऑपरेटर है इक्वल टू, वैल्यू है सनी. तो मतलब जो पहला स्प्लिट हो रहा है मेरा, वो आउटलुक की वैल्यू पे हो रहा है. मतलब ये एक्चुअली वो डेटा है कि बच्चे बाहर खेलने जाएं या ना जाएं, बेस्ड ऑन द टेम्परेचर. आई थिंक ये वही डेटा यूज किया होगा इसने. हाँ, तो यहां पर इसने आउटलुक की मतलब फील्ड की वैल्यू यूज की है, और यहां पर वो ये देख रहा है, देखो, लेस देन, ग्रेटर देन, जो आप भी नॉर्मली चेक्स लगाते थे, एक लेस देन होता था, एक ग्रेटर देन होता था. तो इसने लेस देन और ग्रेटर देन के चेक्स लगाए हैं. फिर ये किसी एक नोड पे आया होगा, विदाउट गोइंग इनटू मच डिटेल. फिर वो नेक्स्ट नोड पे जब गया होगा, फिर से उसने दूसरा कॉलम लिया विच इज से ह्यूमिडिटी, और
ह्यूमिडिटी में लेस देन, ग्रेटर देन, वैल्यू 80। तो ये पीएमएमएल अलग तरह का बना है। तो पीएमएमएल फाइल मॉडल स्पेसिफिक बनती है, लेकिन आप देखोगे तो लैंग्वेज कुछ लेना देना नहीं है। ये आर से बनी थी, पाइथन, दे विल सिंपली कन्वर्ट द एग्जिस्टिंग कोड इनटू अ पीएमएल, दैट्स इट। बिकॉज होता क्या है कि हो सकता है कि आर प्लेटफॉर्म पे मेरा कोड चलने में टाइम ले रहा है, पाइथन पे वो जल्दी चल जाए। तो सिर्फ एक्सपेरिमेंटेशन के लिए तो मैं अपना 1 महीना नहीं दूंगा, तो मैं कंटिन्यू करूंगा। सिर्फ नहीं तो मैं आर पे जाऊंगा। लॉट ऑफ सच थिंग्स हैज टू डिसाइड व्हेन